I think a million people would have told you this, sir. You are the reason that people like me took train, flight, or bus to this city called Mumbai, sir. Thank you very, very much, sir. May I request Arshad Varsi to join me here, please? Baman, sir, आप भी आ जाइए. You may clap. And may I request Saurabh, are you there? Okay, Saurabh is not here. I should please say a few good things about the film and me. I mean, मैं जी प्रॉब्लम ये है कि मैं लॉयर हूँ, सच कैसे बोल दूँ? ओके ये फिल्म एक्चुअली मेरे दिल के काफ़ी करीब है. जब सुभाष ने मुझे कहानी सुनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी. मुझे इसमें इसकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी. इसमें जो रियलिज्म है और जिस तरह एक कोर्ट रूम को पोर्ट्रे किया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो हमने मेरे ख्याल से आज तक तो देखा नहीं है. विच वॉज रेवलेशन विच आई एन्जॉयड. आई द विजुअलाइजेशन व्हेन ही नरेटेड टू मी, एंड जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी मुझे बहुत पसंद आई. तो खैर एनीवे, ये हमारी मेहनत है. आप लोगों को पसंद आए. जैसे मरिया ने अभी भी कहा कि आई आस्क्ड her, did you like the promo? She said I loved it. She said I hope the others love it too. So that is, I hope you love it too. So, and besides that, I have to say thank you to my hero, Mr. Amitabh Bachchan. Without him, I wouldn't be here. He's the one who's responsible to punish you all with me in front of you all. So I have admired him all my life, and he's the one responsible. I mean, every time I thank God for anything, there's always a prayer that we say to the Bachchan family, because whatever I think we have today is because of him, definitely. And it's really there because of him, because he introduced me to acting, to the film industry. He opened the door for me. He gave me a livelihood. He gave me an Audi Q7 as well. So I have a great life thanks to him. Thank you, sir. Thank you very much. Subhash sir has said to say some nice things about him in the film. I made a New Year's resolution not to lie, so it's going to be difficult. But the truth of the matter is, if there is one reason why I agreed to do this film, is because of the way this man narrated this wonderful story to me over 6 or 7 sessions. And I kind of felt drawn and compelled to do it. And then I asked him who's playing Jolly. So he said Arshad Varsi, and by then I'd already agreed to the film, so it was too late to back up. But having said that, in my short young career, I've done a few films, and I can safely say that he's one of the very, very few directors who've actually pushed me further and further and further to do a better job. And I hope I have done justice to your vision and your faith you've had in me. And trust me, I believe and I mean every single word that I say. And since everybody's taken an opportunity, Mr. Bachchan, I won't keep quiet either. Well, the reason why I am in films, everybody knows. Everybody knows that probably there's no bigger fan on this planet than I am. I had cried in Amar Akbar Anthony. It was a comedy film, but I cried simply because Mr. Bachchan got beaten up in that film. And it hurt me no end as to why he was allowed only one punch. And I got beaten up by my friends because I had an argument with them after I lost a chip of my tooth. But Mr. Bachchan, it is almost like a dream come true for a lot of people to be sharing the stage with you, sharing the screen with you, and sometimes just being around you. Thank you very much for being there for us. Thank you. मैं फॉक्स स्टूडियोज़ और सुभाष आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. शुभकामनाएं मेरी तरफ से. ईश्वर करे इस फिल्म को भी खूब सफलता प्राप्त हो. अरशद ने जो कहा वो कुछ हद तक सही था. हालांकि ये मेरठ से हैं और जो इनका प्रोफेशन है उससे इनको कुछ ज़्यादा ही लगाव है. जया ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया और ABCL में जो पहली फिल्म बनी थी उसमें अरशद वासी ने काम किया और तब से धीरे धीरे ये
अपने झंडे जो हैं ये गाड़ते रहें और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि झंडों की कमी पड़ गई है कुछ ऐसा लगता है। Boman, thank you so much for all your kind words and your great affection and love for me. I'm so sorry that you had to get bashed up because of me. But I hope that this film does well. I'm truly impressed by the amount of new talent that the film industry is producing every second month almost, and a lot of young directors, particularly like Subhashji and several others, are coming up with new content and new ideas and breaking rules and actually becoming so hugely successful. This is bodes very well for the Indian film industry, and I'm very happy to be a part of it. I only hope that some of those directors would come to me, and I'd like to work with them at some time to time. Thank you so much for having me here. Thank you. Ladies and gentlemen, I'd like to request the media now. Sir, can we please give a photo opportunity for the media? Vijay, if you could please join in. Thank you everybody. Can we just request the media to settle down? We just like to kind of open the floor up for question and answers. Before that, I believe Mr. Bachchan has to leave. So thank नो you, sir. सर, हेलो सर, बात का जवाब तो दे दीजिए सर, आपके लिए आए सर। थैंक यू सो मच। या फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सर। जी, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर टाइम के लिए। मिस्टर बच्चन, जैसे आपकी लाइफ में कभी आपको कहीं ऐसा कुछ स्ट्रगल करना पड़ा हो जब आपको ऐसा लगा हो कि हमारी जो जुडिशरी है या लॉ है उससे परेशान होकर कभी आप थक गए हो या आपको निराशा हुई हो समवेयर इन योर लाइफ? ईश्वर की कृपा रही, अभी ये शुभ अवसर आया नहीं मेरे जीवन में, लेकिन सुनता रहता हूँ और आप लोगों के जरिए अखबारों वगैरह में देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। कभी ऐसा मौका मिला नहीं, लेकिन यदि कभी मौका मिला तो मैं इतना केवल कहना चाहूँगा कि सच्चाई का सामना करूँगा। एक बार कई साल पहले देश में नहीं विदेश में अवसर मिला था जब बोफोर्स का इल्ज़ाम लगाया गया था मुझ पर और मेरे परिवार पर। उस समय लंदन के रॉयल कोर्ट्स में हमने मुकदमा लड़ा था और उसमें विजय प्राप्त की। वो शायद पहला अवसर था जब मैं एक कटघरे के अंदर गया और क्योंकि उस समय सच्चाई के अलावा हमारे पास और कोई यंत्र था नहीं, इसलिए सच्चाई बोली और उसके बाद विजय प्राप्त की। सर 60+ कैटेगरी में यू आर द हाईएस्ट पेड एक्टर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी वो अर्शद अच्छा, I apologize. He will kill me if I don't let him go. I promised him 15 minutes. It's been more than half an hour. Really apologize. आप मुझे मार सकते, भवन को मार सकते, भवन को मारिए। इनसे भी कुछ प्रश्न पूछ सकती हैं आप। आपने पूछा क्या था अभी? 60+ कैटेगरी में यू आर द हाईएस्ट पेड एक्टर इन इंडिया। But why are you asking about 60+? हाँ, बट इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं, उसके अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप हाईएस्ट पेड एक्टर हो गए, मतलब इस वक्त जो यंग जनरेशन है, आई मीन ऑल द एक्टर्स इन बॉलीवुड, You give them a tough competition. इस गलती के लिए मैं माफी चाहता हूँ मैडम। बच्चन साहब, आखिरी सवाल आपसे। आखिरी इतना आखिरी सवाल। बच्चन साहब, आखिरी सवाल आपसे। मैं विकास हूँ सहारा से। जैसे कि प्रोमो में भी हमने देखा कि इसमें डायलॉग है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं,
शायद इसीलिए चोरों को और जो ऐसे काम करते हैं, जैसे अभी रेप मामला हुआ था दिल्ली का, तो काफ़ी टाइम लग जाता है पुलिस को वहां तक पहुंचने में, क्योंकि हाथ लंबे होते हैं। क्या मानते हैं आप? अब ये तो जितने भी प्रांत हैं अलग अलग उनके नियम हैं, उसके अनुसार वो सब काम करते हैं। जहाँ तक हमने अभी तक सुना है, जो जिस हादसे के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट निकली है वो तो ये कह रहे हैं कि 4 मिनट के अंदर वो वहाँ पहुँच गए थे। ये और बात है कि जिनके साथ ये बहुत ही विभत्स हादसा हुआ वो काफ़ी देर तक वहाँ पड़े रहे और किसी ने उसको, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको और आपको और सबको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, समाज को कैसे बदलें, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। और बड़ा आसान काम होता है किसी दूसरे को कहना कि गलती आपकी है, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि हमारी क्या गलती हुई इसमें। बच्चन सर, ऑडियंस और या आपके राइट, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। बच्चन सर, ऑडियंस और कितना तरसेंगे, मतलब आपको बिना बिग स्क्रीन पर देखे? कब आप वापसी कराएंगे? फिल्म में? जी हाँ, जी हाँ, बड़े स्क्रीन पे। बस ये जनवरी के अंत में एक आध फिल्में शुरू होने जा रही हैं और उम्मीद करता हूं कि साल के अंत तक शायद आप एक दो फिल्में देख सकें। ये बीच में एक मेरी सर्जरी हुई थी, तो इसलिए हमने कोई ज़्यादा काम नहीं रखा था अपने लिए, केवल केबीसी का ही काम था। और अब केबीसी को समाप्त होने में बस चंद दिन रह गए, उसके बाद फिर फिल्म का काम शुरू करेंगे। बच्चन साहब, बच्चन साहब जी, बच्चन साहब नमस्कार। कहाँ आप? जी, बच्चन साहब, अभी आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द मतलब इतनी आपको इस हद तक आइडलाइज करते हैं और दुनिया के करोड़ों लोग आपको आइडलाइज करते हैं। आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं अपने करियर में, अपने जीवन में? कई बार मैंने कहा है कि अपने करियर में मैं दिलीप साहब, वहीदा जी, ये मेरे आदर्श रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने काम किया और इनका योगदान जो रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो अद्भुत रहा है। निजी जीवन में मैं अपने माता पिता को याद करता हूँ और जो कुछ भी मैंने सीखा है सब उन्हीं से सीखा है। बच्चन साहब, एक आपके सामने, आपके राइट हैंड साइड, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो मेरे बाएं और दाएं तरफ बैठे हैं। जी, चूंकि आप ये वकालत से जुड़ा हुआ है सर फिल्म, और ये श्वेताब बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज़ से। सर, बहुत दिनों से एक चीज़ चल रही है आपके जीवन में, जिसके बारे में आप ज़्यादा अपने ब्लॉग पे भी चर्चा करते रहते हैं। आईटी डिपार्टमेंट के साथ आपका केस, जिस पे आप उनको अनुरोध करते रहते हैं, लेकिन केस आपका जो यूं ही चलता रहता है। अभी आज के दिन भी एक नोटिस आया है, तो आपको कोई ऐसा वकील नहीं मिला जो आपके केस को पूरी तरह सॉल्व कर दे? मैं संभाल रहा हूँ, ये कर देंगे। जी मैं संभाल रहा हूँ, वो आप मुझसे बात की। ऑलराइट, मोहम्मद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? Me better than him. वो ज़्यादा बेहतर है। डिसाइड कर लेंगे कौन है। नहीं, ये देखिए, जीवन में दो ही चीजें निश्चित है, एक मौत और एक इनकम टैक्स। जितने भी प्राणी हैं उन सब के जीवन में कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का मामला चलता रहता है। वो कोर्ट कचहरी का मामला है, वही सब तय करेंगे। अगर वो हमारे पक्ष में होगा तो जैसा कोर्ट कहेंगे उसका हम पालन करेंगे। Right. Thank you. Excuse me, ma'am. ये बहुत ही कमाल का सवाल है। आई रियली बहुत पसंद आया मुझे ये सवाल। अगला सवाल क्या है? Ladies and gentlemen, I think Bachchan Saab deserves a big hand, and thank you very much for. Thank you.